Yeah, screen is visible to all. Yes, sir, it's Yes, sir. visible. Yes, sir. Yes, sir. So this is once again I welcome you all in the HFI coaches development level 3 course. In this, first of all, we covered many topics. So now today's topic is a basic collective play attack in handball. So I already told you the most important factor is scoring the goal in handball, and everybody wants to just see this thing, how the teams are scoring the goals, how the players are scoring the goal. So, and what happens, players when scores the goal, he or she also enjoys a lot, as well as the his or her teammates, and along with that, the spectators also. So, the ultimately aim in our handball is to score the goal and how we defend the goal. And the team who scores the more number of goals against the opponent team, that team simply wins the match. This is a simple definition of handball that we can define in 3 or 4 lines. So the term when we are just talking here is the basic collective play. How now here we are just talking about the collaboration between the teammates. Here the story starts like that. So we are working on that. Previously, we just covered the technical aspect. In previous session, we covered technical aspect, rules and all. And then afterwards, we move towards the we factor. That is now I, and we are moving towards the we. Previously, in previous sessions, we learned how to play individually. In this session, we work on the we. हम लोग कैसे करते हैं, यानी आज हम ये इसमें लर्न करेंगे कि इंडिविजुअल से हम कैसे ग्रुप में और कैसे टीम में हम बेसिकली वर्क करते हैं. इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव या कलेक्टिव टीम प्ले. सो इन दिस बिगिन विद दिस. So first of all, everybody knows about the tactics in handball because it is a very versatile game. It is one of the fastest game on the planet, just we can say. And after all, when the game becomes fast and when the players are involving and there is certain dimensions of the court is there, that is 40 by 20 meters. Now, two teams are playing, दो टीम खेल रही हैं. And what happened? How to counter the opponent? अब यहाँ पर शुरुआत होती है because teams are equal, levels are equal, players का level भी equal है, टीम का जो numbers हैं वो भी equal है. That is 7 versus 7. That is 6 plus 1, 6 court players and 1 goalkeeper. Now the story begins here with this: how we can beat the opponent by applying the correct rule. Within the rules, we can beat the opponent. अब ये कैसे शुरू होगा? तो first of all, we have to understand what is tactics. So tactics is very simple. It is an economical and purposeful action to overcome the opponent or the team, opponent team. तो बेसिकली ये चीज होती है इसमें. अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बेसिक फैक्टर है, हाउ टू ओवरकम द अपोनेंट. So here again there are 3 types of tactics we are talking. So before that, I am just covering this. Today we are just talking about the attacking tactics. So basically there are 2 types of tactics: attacking tactics and the defensive tactics. Today we are just covering the attacking tactics. In this, again it's divided into 3 parts. That is individual tactics, group tactics, and the team tactics.
So when these three things combine, then the team can achieve the goal. Until and unless if the team is not applying these three tactics, team is never able to win the match. वो जीत ही नहीं सकते. So now the question arises, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि what is individual tactics? So like if we just talking about the individual tactics, if the player is performing his abilities in an economical and purposeful manner to counter the opponent, that is called individual tactics. Now अब individual tactics में आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ हिंदी में. इसमें क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी नॉर्मली अपनी एबिलिटीज का, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए काउंटर, जो हमारे अपोनेंट्स हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको बीट करने के लिए, उसको हराने की कोशिश करता है, उसमें जो वो एक इकोनॉमिकल और पर्पसफुल कुछ एक्शंस करता है, कुछ जिसका उद्देश्य होता है उन एक्शंस का, वो जब उपयोग करता है तो वो इंडिविजुअल टैक्टिक्स है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, लाइक इफ somebody, if the player in handball start the sprint and suddenly stop and then again start sprint, what happened? He or she is trying to beat the opponent, because what happened, he just avoid the marking. मार्किंग हो रही है, मैन टू मैन सिचुएशन है, आप समझिए मैन टू मैन सिचुएशन है, और प्लेयर क्या कर रहा है, उसको मार्क कर रहा है. तो प्लेयर क्या करता है, इंडिविजुअल टैक्टिक्स क्या अप्लाई चालू करने शुरू करता है. ही रन क्विकली एंड देन स्टॉप एंड देन अगेन चेंज द डायरेक्शन एंड रिसीव्स द बॉल. इजंट इट? करता है कि दिस इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल टैक्टिक्स. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. लाइक गोलकीपर आल्सो अप्लाइज द इंडिविजुअल टैक्टिक्स मैनी टाइम्स. जानबूझ के ही शोज हिज रॉन्ग कॉर्नर, आपको अपना शो करेगा, रॉन्ग कॉर्नर शो करेगा जानबूझ के, एंड सडनली ही ग्रैब्स द बॉल. दिस इज इंडिविजुअल टैक्टिक्स प्लेड बाय द गोलकीपर. समटाइम ही जस्ट ओपन्स द लेग. विंगर्स को बहुत अच्छे से पता होगा, विंगर्स के लिए ज्यादातर ओपनिंग वो जानबूझ के ओपन करता है गोलकीपर. एंड सडनली व्हाट हैपेंड, विंगर जस्ट डायरेक्टली ट्राई टू शूट द बॉल within his or her legs, and suddenly what happen, he just closes his legs. वो अपना legs को close कर लेता है. So like PP sometimes do individual tactics, he just shows in this direction. So this is a basically individual tactic. It's performing all the time. Now what happened in the group tactics? Okay, the same thing. The group of players, 2 or 3 players, using their abilities and do the purposeful and economical action to counter the opponent or opponent team. That is called group tactics. Okay. Now, for example, I just tell you that, for example, like group tactics in screening. Everybody know about the screening? Basically, this is a combination between the center back and the pivot player. Pivot player usually just use his screen to create the open space for the center back, and center back when gets the open space and goes for the shooting. So this is a collaborative effort by the teammate. Playmaker, center back player able to score the goal. Without the effort of the PP, that is we call pivot player, center back is never able to score the goal. Never ever able to score the goal. तो अब यहाँ पर ग्रुप टैक्टिक्स क्या होती है, जब 2 और 2 से अधिक खिलाड़ियों का सामंजस्य बैठ जाता है, कोऑपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, सामंजस्य, एक साथ मिलकर जब वो लोग काम करते हैं टू अचीव द टारगेट, 2 और 2 से अधिक खिलाड़ियों का, तब वहां पर उसको हम बोलते हैं ग्रुप टैक्टिक्स. अब इसके बाद हम वी मूव टुवर्ड्स द, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको स्क्रीनिंग. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टीम टैक्टिक्स. व्हाट इज टीम टैक्टिक्स? बेसिकली टीम टैक्टिक्स व्हेन होल टीम इज अप्लाइंग हिज एबिलिटी टू स्कोर द गोल
by using economical and purposeful action to beat the opponent, the whole team. Now the aim, like we are just, our aim is to winning the match, isn't it? हमारा aim क्या है? इसीलिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, this is a one sign, ultimately aim. तो इसमें ऐसा नहीं है कि if you are using individual tactics the team can win. No, the team only win when applying all these three tactics. अब होता क्या है, when individual tactics is applied, what happens with his teammate, that become a group tactic. When group tactics just done by 2 or 3 or 4 players, or maybe sometimes 5 players, when the goalkeeper is involved, then it become a team tactic. अब इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम होता है. अब होता है कि गोलकीपर का क्या रोल आ जाता है? When the goalkeeper passes the ball to the winger who is running very fast from near to the sideline and score and receives the pass, and the pass is accurately thrown by the goalkeeper, and he just receives the ball and he directly shoots the ball. So that comes under this. अभी देखा कहां पर हमारा कैसे हो रहा है? If again what happened, wingers hold somebody just defend the winger, and wingers just passes the ball to the second winger, to the right winger. First he receives the ball from the goalkeeper, the left winger, and what happened? The left winger, then simultaneously the defenders just begin quick retreating, and defends that particular winger, and that same winger just passes the ball to the right winger, and then again this is a collaboration. So here we are using so many team tactics. So here we are also using some attacking systems to defend, to attack, like we are using 3-3 system, 3-3 attacking system. So it is again a collaborative effort by each and every player. सभी players effort कर रहे होते हैं. So like that we have to first focus on the individual tactics, then group tactics, and the team tactics. So now in this, अब इससे बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट स्टार्ट होता है. अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, तो ये सिर्फ गेम में हमारे यही सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. These factors are working. इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो रहे होते अगर आप देखेंगे. अभी प्लेइंग का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग खेलते कैसे हैं? न्यूमेरिकल इक्वलिटी. न्यूमेरिकल इक्वलिटी मींस like if four versus 4 and 6 versus 6, यानी सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे सामने हैं, तब वी कॉल्ड अ न्यूमेरिकल इक्वलिटी. हमें उसमें भी खेलना होता है, एंड वी हैव टू ट्राई टू बीट द अपोनेंट अंडर दिस कंडीशन. हम इसमें भी बीट करने की कोशिश करते हैं. नाउ द सेकंड फैक्टर इज न्यूमेरिकल एडवांटेज. अब क्या होता है? टीम इज अटैकिंग एंड हैविंग अ मोर नंबर ऑफ प्लेयर कंपेयर टू द डिफेंसिव टीम. अब ये कैसे होगा? लाइक इफ द अपोनेंट टीम गेटिंग अ 2-minute सस्पेंशन और मे बी रेड कार्ड, उस कंडीशन में वो नंबर चेंज हो जाता है, यानी 6 versus 5 और मे बी 7 versus 6, जिसमें अटैकर्स की जो होती है वो ज्यादा हो जाती है संख्या, और जो डिफेंडर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है कोर्ट में कुछ समय के लिए, दैट इज मे बी 2 minutes. तब हम उस कंडीशन में गेम खेलते हैं. फिर न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज, यानी आपकी टीम को नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. अब जब ये कंडीशन आती है, फिर आप किस तरह से अटैक कर रहे हैं, व्हाट टैक्टिक्स यू आर अप्लाइंग. तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम इन विच कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू प्ले. अब होता क्या है, बहुत सारी जो टीम्स होती हैं, दे आर वेरी इक्विप्ड व्हेन दे आर प्लेइंग इन न्यूमेरिकल इक्वलिटी, और बहुत सारी टीम्स ऐसी होती हैं दे नेवर एवर एबल टू यूज दिस न्यूमेरिकल एडवांटेज.
वो यूज ही नहीं कर पाते। अब होता क्या है, क्यों नहीं यूज कर पाती? बिकॉज दे आर प्लेइंग अ सेल्फिश प्ले। वहां पर क्या हो जाता है, क्लोज प्ले चालू हो जाता है, इसे हम लोग क्लोज प्ले बोलते हैं। सेल्फिश प्ले चालू हो जाता है, आई हैव टू स्कोर मोर, वी हैव टू स्कोर मोर। अब वहां पर वो वी से ई आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल एडवांटेज टीम डजंट नो हाउ टू प्ले इन दिस सिचुएशन, एंड न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज ऑलरेडी प्रेशर्ड। अब वो वहां पर क्या कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट। अब वहां पर चालू हो जाता है कि 2 मिनट कब होगा, देन वी स्टार्ट प्लेइंग दिस। तो इसके लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा कि हाउ वी प्ले इन डिफरेंट सिचुएशन टू आवर प्लेयर्स। जो हमारे बेसिकली जो बिगनर्स की बात हो रही है, इस तरीके से हम अपने बिगनर्स प्लेयर्स को हमें उनको यूज करना है। ओके, नाउ द वी जस्ट कम अ वाइड ओपन और नैरो स्पेस। so sometimes what happen, we are playing in a wide open manner and sometimes we play in a narrow space. So this is again a team strategy when to play wide open and when we just create a narrow space. So it depends upon the strategy of the team and the abilities of the player of that particular team. अब उस टीम के पास कैसे प्लेयर्स हैं, जंप शूटर्स हैं, या उसके पास शॉर्ट हाइटेड प्लेयर्स हैं, या बेसिकली बहुत एजाइल प्लेयर है। तो कौन सा हमें मेथड यहाँ पर यूज करना है? तो बेसिकली आपको मैं जैसे अगर बोलेंगे तो वाइड ओपन होता है, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं, अगर कुछ कंफ्यूज हो अगर इस बारे में, तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो जैसे 2-4 खेल रहे हैं, 2-4 अटैकिंग सिस्टम जब खेलते हैं तो दैट बिकम वाइड ओपन बेसिकली, जब हम उसमें जा रहे हैं। और जब हमारा नैरो स्पेस में हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम 3-3 अटैकिंग सिस्टम खेल रहे होते हैं। पर 3-3 में भी क्या होता है कि समटाइम व्हाट हैपन, अगर हमारे जो प्लेयर की जो हाइट इज अबाउट 6 फीट और समथिंग लाइक दैट, 6+, तो वो वाइड एंगल में जाके दे कैन प्ले टू कंफ्यूज द डिफेंस लाइन। तो उस समय ये कंडीशन बनती है। ये क्लियर है कि मैं आपको क्लियर करूं? वाइड एंगल और नैरो ओपन है, आपको क्लियर है? वाइड ओपन और नैरो स्पेस? नो सर। नो सर। ओके, ये अभी आपको दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख यस रहा है? सर, यस सर। Yes, yes, sir. Presently I am using mouse, यस सर। I am not using pen, so just bear with me in the drawing set. So like this is our basic. अगर players just taking here, this back players just taking the place here, अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो सिचुएशन बन रही है वाइड ओपन है, ये बिल्कुल जो बैक प्लेयर्स होते हैं, दे आर टेकिंग द पोजीशन नियर टू द साइड लाइन। तो ये क्या हो जाता है, इससे ओपनिंग होती है। व्हाट हैपन, अब नाउ क्या होता है, ये जो प्लेयर होता है, दिस प्लेयर ड्रैग्स हियर, और जो डिफेंडर होता है वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू दिस एक्शन। वो उसके सामने एक ह्यूमन एक नेचर होता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है, पर वो इसके लिए एक डिमांड होती है कि द साइड लेंथ ऑफ द प्लेयर मस्ट बी गुड, तभी ये वाइड ओपन आप खेलना चाहिए। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर साइड लेंथ इज गुड ऑफ द प्लेयर, साइड लेंथ यानी उसके स्टेप्स की चौड़ाई अच्छी है, वो अच्छे से जंप करता है, उसकी स्टेपिंग अच्छी है, देन दे कैन कवर। तो आपको मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल टीम्स है, दे आर प्लेइंग विद दिस वाइड ओपन। तो इससे क्या होता है, जो डिफेंस लाइनअप है, दे आर आल्सो ओपन, डिफेंस भी ओपन हो जाता है। बट समटाइम्स हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स नहीं है, तो हमें क्या करते हैं, ये हमारे जो बैक प्लेयर होते हैं ये थोड़े क्लोज आ जाते हैं, तो नैरो। तो इन कंडीशंस में हम क्या कैसे खेलना है, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन, क्या हमारे प्लेयर्स रेडी हैं क्या वाइड ओपन के लिए, क्या प्लेयर्स हमारे नैरो ओपन के लिए? तो इस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है वाइड ओपन और नैरो स्पेस। नाउ गेम प्ले इन डिफरेंट ट्रांजिशन। अब होता है क्या इसमें, ट्रांजिशन टू अटैक, टू डिफेंस और पोजिशनल प्ले। अब इन कंडीशन में हमें, यानी ज्यादातर हम किस में खेल रहे हैं, पोजिशनल प्ले करते हैं।
अटैक हमारा जो है वो सिंपल एक कंडीशन में रहता है, समटाइम्स वी गेट अ चांस फॉर फास्ट ब्रेक, बाकी समय क्या होता है वी कैन अप्लाई द फास्ट ब्रेक ऑल्सो, लाइक ट्रांजिशन टू अटैक टू डिफेंस। अब जैसे ये ट्रांजिशन फेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आप जैसे कितना क्विकली यू कम इन द अटैकिंग पोजीशन, how you grab the condition, how you grab the ball, how you intercept the ball, how you quickly transit to defense to attack, that's the beauty of the team। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स को ये नहीं पता होता when to run, where to run and why to run। now the question starts, now question begin with this, कब भागना है, कहाँ भागना है, किधर भागना है, किसके साथ भागना है, तो उनको ट्रांजिशन उनका बिकम अ पुअर। तो यहाँ पर इसकी भी वी हैव टू गिव द ट्रेनिंग टू आवर बिगनर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द बेसिकली दैट वी कॉल फास्ट ब्रेक। अब सबसे पहले जब ट्रांजिशन की बात आती है तो अगर हम अटैक में स्टार्ट करते हैं वी हैव टू ट्रांजिशन टू, दिस इज द नंबर 1। अब यहां पर जब बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर काम कर रहा होता है कि फास्ट ब्रेक में आप कितना क्विकली आप रेडी हो जाते हैं, हाउ यू ट्रांजिट टू अटैक टू डिफेंस टू अटैक, कितना क्विकली आप डिफेंस से अटैक में चले जाएंगे, यहां पर ये ब्यूटी स्टार्ट होती है और आपने कितने अच्छे से उनको ट्रेन किया है। अब आपके पास बॉल पोजीशन आई, अब प्लेयर्स को बॉल जैसी मिलती है एट द सेम टाइम what happened, that team become attacking team, isn't it? When the team gets the ball possession, when the defensive team gets the ball possession, the same time that team become a attacking team। अब attacking team हुआ पर how quickly that utilize that particular time, जिससे कि what happens, the opponent team not get organized, वो वहां पर उनको ऑर्गेनाइज डिफेंस ना कर सके। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें वी हैव लाइक, अब इसमें सिचुएशंस कुछ बनती हैं। अब इसमें सबसे पहली जैसी होती है सिंपल फास्ट ब्रेक, दैट इज फर्स्ट वेव, एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक सेकंड वेव, कंप्लीट फास्ट ब्रेक थर्ड वेव एंड देन फास्ट थ्रो ऑफ। ये हमारा सबसे पहला काम स्टार्ट हो जाता है ट्रांजिशन टू अटैक में। अगर इसमें हम बात करते हैं तो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट टीम्स मस्ट कंसीडर एंड वी हैव टू टीच द टीम्स अकॉर्डिंगली। वी मस्ट टीच द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट वेव, इन सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड आफ्टर कंसीडिंग द गोल दैट इज वी कॉल फास्ट थ्रो ऑफ। उसमें कैसे हमें ट्रेन करना है उसकी हमें तैयारी करानी चाहिए, दैट इज वी कॉल अ ट्रांजिशन टू अटैक। अब इसमें फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, अब इस सिचुएशन में जो एंगल्स होते हैं टीम्स क्या करती हैं, वाइड ओपन स्पेस में जाती हैं या नैरो स्पेस में जाती हैं या टूवर्ड्स द साइड लाइन जा रहे हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा होता है कि प्लेयर्स क्या साइड लाइन से रन कर रहे हैं टूवर्ड्स नियर टू द साइड लाइन या सेंटर ऑफ द लाइन। फिर क्या होता है, प्ले अराउंड द गोल एरिया। अब जैसे क्या होता है, लूजिंग द बॉल पोजीशन। अब नेक्स्ट हमारा जब क्या हो रहा होता है कि अगर इसमें देख रहे हैं लूजिंग द बॉल पोजीशन में क्या होगा, फिर हमारा वहां पर स्टार्ट हो जाएगा देन अटैक अगेंस्ट पोजिशनल डिफेंस। जब ये हमारा अगर इस कंडीशन बनती है, ये बेसिकली हमारी एक कंडीशन हुई ट्रांजिशन टू अटैक नंबर 1। अब क्या हुआ, टीम इज नॉट एबल टू स्कोर द गोल बाय यूजिंग द फास्ट ब्रेक। तो क्या अटैक नहीं करेंगे, क्या टीम अटैक नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अब वो क्या करेगी, वो अटैक करेगी जब पोजिशनल डिफेंस हो जाएगा, यानी कि उनका जो डिफेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। उस कंडीशन में हम पोजिशनल अटैक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमारे प्रीवियस सेशंस में आई कवर दिस पोजिशनल अटैक, ट्रांजिशन टू अटैक, ये सारे फेजेस थे, वो उसी का ही आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पोजिशनल डिफेंस से टीम रेडी हो गई है,
तो अब उस कंडीशन में टीम अपोनेंट टीम डिफेंस में फुल लाइनअप आ चुकी है, तो देन द स्टोरी स्टार्ट हाउ वी द टीम अटैक्स इन द पोजिशनल डिफेंस। अब ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, हम इस पे बात में भी करेंगे क्या क्या चीजें हैं ये। अब इसमें होता क्या है कि समटाइम व्हाट हैपन, ट्रांजिशन ऑफ अटैक जब क्विक करते हैं तो वी लॉस द बॉल पोजीशन, हमारा बॉल पोजीशन छूट जाता है। तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद एंड व्हाट हैपन अगेन वी हैव टू ट्राई फॉर द रीगेनिंग ऑफ द बॉल पोजीशन। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है? ड्यू टू द एरर, passing error, catching error, spatial, temporal error, time and space management नहीं होता अच्छे से प्लेयर से, नैरो एंगल में जाना है, वाइड एंगल में जाना है, पोजीशनिंग कहाँ लेना है, तो ये कुछ एरर होते हैं जिससे क्या होता है, या रॉन्ग पासेस होता है, तो टीम्स may lose the ball possession, but again teams try to regain the ball possession and again the system starts with the transition to attack and then the second is attack against positional defense. Now अब फेजेस ऑफ अटैक की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन टू अटैक में जो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ओपन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। हाउ वी गेट द ओपन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, व्हाई वी आर गेटिंग ओपन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपोनेंट टीम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड येट। अभी क्या हुआ है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इसमें ओपन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि अभी डिफेंस रेडी नहीं है। अब उसमें इस्तेमाल क्या करना है, व्हाट वी हैव टू यूज स्पेसेस ऑफ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत होती है, स्कोर करने के लिए रास्ते बहुत खुले होते हैं क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं है। फिर उसमें क्या होता है, नेक्स्ट इज द हमें किन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे बात करें तो दैट इज पोजीशन, आपकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंगर गलत डायरेक्शन में रन करता है, गोलकीपर इज नॉट एबल टू पास द बॉल। आप गोलकीपर को अगर विंगर की पोजीशन अच्छी नहीं है, पीपी इज राइट रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, showing his back and just turning the head like this only, again it is very difficult for the goalkeeper to pass the ball. But the same pivot player runs in a diagonal manner in a curvature of the path. अगर वो कर्व में भागेगा, कर्व में रनिंग करेगा तो गोलकीपर इजीली पासेस द बॉल, बहुत इजी होता है टू ग्रैब द बॉल। और मैक्सिमम प्लेयर्स जब बिगिनर होते हैं तो उनको प्लेयर्स को क्या करते हैं, वो रन सीधे सीधे रन करना चालू करते हैं और बस टर्न करते हैं बाय टर्निंग देयर नेक। अब गोलकीपर को इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू थ्रो द बॉल, और ये सबसे बड़ा एरर होता है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरर। और इसीलिए जो पासिंग एरर होना चालू होता है। तो पोजीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या विंगर सही पोजीशन में जा रहे हैं, वो भी एक है। फिर टेम्पोरल, इट इज बेसिकली टेम्पोरल मींस इट्स रिलेटेड टू द टाइम, क्या टाइमिंग सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भाई। ये ट्रांजिशन ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट के लिए रहेगा, इट इज फॉर द माइक्रो सेकेंड, फॉर हार्डली फॉर 2-3 सेकेंड। इफ द टीम इज गुड देन दे कैन स्कोर द गोल। तो टाइमिंग मैटर, तो टेम्पोरल डोंट गेट कंफ्यूज, आपका यहाँ पर हो रहा है इन रिलेशन टू द टाइम। आपका टाइमिंग बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल एंड हाउ क्विकली he recovers the ball and how quickly he passes the ball, यहाँ पर पूरा स्टार्ट वहां से होता है। या जो उसका जो टीम मेट जो प्लेयर है वो कितना क्विकली उस टाइम को यूटिलाइज करता है। देन द थर्ड, स्पेस। भाई जो स्पेस क्रिएट हो रही है वो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर वो लाइक इट बिकम समथिंग लाइक परमानेंट डोर, आपके वहां रास्ता हमेशा खुला रहेगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। वो कुछ समय के लिए वो जो स्पेस मिलेगी, स्पेशियल मींस इन रिलेशन टू स्पेस, तो डोंट गेट अगेन, ये स्पेस जगह से संबंधित है, ये टाइम से संबंधित है और ये जगह से संबंधित है, स्पेशियल। तो स्पेशियल इज रिलेटेड टू द स्पेस। आपके पास जो स्पेस है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं क्या प्रॉपर्ली। फिर क्या होता है, एंड और न्यूमेरिकल, क्या नंबर्स क्या है। अब यहाँ नंबर्स की क्या बात होती है, because whenever the team just tries to score the fast break or utilizing the fast break, what happens at that time, the situation is like that only, goalkeeper
2 versus 1, goalkeeper plus 2 versus 1 situation is there most of the time, or goalkeeper 1 versus 0, nil, एक भी प्लेयर नहीं होता, तो दैट इज अ न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द फास्ट ब्रेक. और समटाइम व्हाट हैपन, गोलकीपर 3 वर्सेस 2, गोलकीपर प्लस 4 वर्सेस 3, यानी हमारे 4 अटैकर हैं और 3 डिफेंडर हैं इंक्लूडिंग द गोलकीपर. गोलकीपर ने पास किया, तो यहाँ न्यूमेरिकल एडवांटेज रहता है कुछ समय के लिए. तो वो न्यूमेरिकल एडवांटेज कब तक रहेगा, व्हेन दिस फैक्टर बी कंसीडर्ड, then the team is able to score the goal by using the fast break. अब क्वेश्चन बहुत सारी टीम ये कहती हैं कि सर हमसे फास्ट ब्रेक में ज्यादातर टीम रिटर्न बैक हो जाती है या हम फास्ट ब्रेक यूटिलाइज नहीं कर पाते. तो फास्ट ब्रेक का यही एक फंडा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. अगर ये आपने कंसीडर कर लिए दीज फैक्टर्स, देन द टीम आर एबल टू स्कोर द गोल. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीचिंग. टीचिंग बहुत जरूरी है. आपको टीचिंग इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग जरूरी, तभी वो ये सारी चीजें कर पाएंगे. नाउ इन हैंडबॉल अ फास्ट ब्रेक इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ, बेसिकली फास्ट ब्रेक का अगर हम देखें तो अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे फास्ट ब्रेक को कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ उसे हम, तो सबसे पहले हमें कुछ फैक्टर्स पे काम करना पड़ा. बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरसेप्शन, आपकी टीम को इंटरसेप्शन आने चाहिए. अगर वो उसमें वीक है तो मुश्किल है. स्टीलिंग द बॉल वाइल ड्रिबलिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है प्लेयर की. ये जो डिफेंडर्स होते हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. जो प्लेयर्स बहुत ड्रिबल ज्यादा करते हैं वो बहुत अच्छे से आप उनकी बॉल स्नैच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से. मैं आपको इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. एक हमारा मैच चल रहा था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, मेडल मैच था, मेडल मैच. तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, अपोनेंट टीम के पास 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे एट दैट टाइम, और बाकी जो 3 प्लेयर्स थे वो वीक थे. अब पर वो जो 3 में से 2 प्लेयर्स थे वो ड्रिबलिंग बहुत कर रहे थे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेयर. पूरी टीम उन पे डिपेंड होकर खेल रही थी. तो इस कंडीशन में क्या कर रहे थे, दे आर डूइंग द ड्रिबलिंग, और इसीलिए वो सबको बीट करते हुए आ रहे थे. पर नोबडी जस्ट मेटलाइज दिस थिंग. और वहां पर क्या हुआ, वी जस्ट अप्लाई दिस थ्योरी, स्टीलिंग द बॉल व्हाइल ड्रिबलिंग. हम लोग ने स्नैच करना चालू किया वहां से बॉल, हमारे स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, एंड दे जस्ट यूटिलाइजिंग दिस थिंग, और वी जस्ट वन द मैच ड्यू टू द अप्लाइंग दिस. पर हमारे बच्चे उनको पता था कि हाउ टू स्टील द बॉल, कैसे बॉल को निकालना है जब वो ड्रिबल कर रहे हैं. और उससे हुआ क्या कि जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल फेल हुई, क्योंकि वो डिपेंड थे, क्योंकि वो पहले से वो सारे मैच खेल के आ रहे थे, और उन इन बिटवीन दे आर नॉट रेडी टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स, बिकॉज होल टीम इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली 3 प्लेयर्स, बेसिकली सेंटर बैक, राइट बैक एंड द पिवट प्लेयर. So when the center back is not able to give the pass while using the dribble, आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटर बैक पे ड्रिबल बहुत करते हैं, और उसमें और हमने मैक्सिमम क्या देखा है कि ज्यादातर प्लेयर्स क्या करते हैं, जस्ट उसकी ड्रिबल जब कर रहा होता है तो दे नेवर ट्राई टू स्नैच द बॉल, दे नेवर ट्राई टू पुट आउट द बॉल. वो करते क्या है, दे जस्ट ग्रैब द प्लेयर. वो बस उनका फोकस होता है हमें प्लेयर को पकड़ना है, प्लेयर को रोकना है. फर्स्ट यू कैन टेक आउट द बॉल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर बच्चों को पता है कि हमें क्या करना है, अगर आपने ये मैक्सिमम टाइम किया तो उसका 50% चांस क्या होगा, उसका प्ले मेकर का ऑटोमेटिक, अगर वो इंडिविजुअल प्ले कर रहा है, देखिए ब्रैकेट में समझिए, अगर वो इंडिविजुअल प्ले कर रहा है तो वो मैक्सिमम टाइम ड्रिबल करके जरूर अंदर आएगा, मैक्सिमम टाइम वो ड्रिबल कर रहा होगा. और जैसे ही अगर वो विद इन द लिमिट आपके रेंज में आ रहा है, इन द जोन ऑफ द डिफेंडर, तो अगर आपके डिफेंडर उसके लिए तैयार है स्टील करने के लिए, तो अगेन दिस इज द एडवांटेज फॉर द टीम, वो फास्ट ब्रेक के लिए जा सकते हैं. फोर्थ टेक्निकल एरर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेयर समटाइम प्रेशर ग्रिप देते हैं, उनको प्रेशर क्रिएट करते हैं प्लेयर, तो उसमें गलतियां करते हैं. पासिंग एरर, गलत पास दे देते हैं. ब्लॉक्ड और प्रोवोक्ड मिस शॉट और ऑफेंसिव फाउल. समटाइम क्या होता है कि जानबूझ के ओपनिंग क्रिएट की जाती है. जो एडवांस यहाँ प्लेयर्स हैं वो जान रहे होंगे, बैठे होंगे, वो देख रहे हैं कि जानबूझ के ओपनिंग क्रिएट की जाती है फॉर द वीक प्लेयर,
जो वीक प्लेयर्स होते हैं, और फॉर द बेसिकली फॉर द विंगर। अगर विंगर को अब नैरो एंगल से शूटिंग करने देंगे तो अगेन दिस इज अ प्रोवोक्ड मिस शॉट बोला जाता है इसको, प्रोवोक। तो ये भी प्लेयर्स को पता होना चाहिए। अब प्लेयर क्या करता है मैक्सिमम टाइम, वो अपने प्लेयर को इतना इंडिविजुअली ब्लॉक कर रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है समटाइम, कि वो प्रोवोक्ड मिस शॉट कराता ही नहीं। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ द प्लेयर। वो आर्ट है, प्लेयर की आर्ट होती है, वो उसकी क्वालिटी होती है, अच्छे प्लेयर्स की क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से उनसे ये प्रोवोक मिस शॉट करवा सकते हैं। एंड देन द ऑफेंसिव फाउल, हाउ यू मैनेज दिस ऑफेंसिव फाउल। ऑफेंसिव फाउल कैसे कर सकते हैं, तो ये अगेन स्टेपिंग का वर्क होता है कि आपके कितने प्लेयर एजाइल हैं, क्विक हैं, तो उसमें ये सारी चीजें हम ऑफेंसिव फाउल भी यूज कर सकते हैं प्रोवोक्ड। फिर क्या हमारी टीम क्या रेडी है फॉर द काउंटर अटैक? समटाइम ओके यार रहने दो, क्योंकि हमारा अब भाई आप फास्ट ब्रेक खेल रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा होता है कि अगर आपको फास्ट ब्रेक खेलना है देन द फिटनेस लेवल मस्ट बी हाई। आपकी टीम का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो काउंटर अटैक के लिए रेडी होगी वो टीम, नहीं तो वो सिंपल पोजिशनल अटैक खेलेंगे। अब फिर क्या होता है, समटाइम व्हाट हैपन, कंसीडेड अ गोल दैट इज वी कॉल्ड अ फास्ट थ्रो ऑफ। क्या हम फास्ट थ्रो ऑफ यूटिलाइज करते हैं? ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आप लोगों से, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द विसल बिटवीन द गोल एंड द थ्रो ऑफ। आप गोल और थ्रो ऑफ की विसल को रिड्यूस कराइए। वो कैसे होगा? जैसे ही गोल होता है, गोलकीपर टेक आउट द बॉल फ्रॉम द नेट and directly throw the balls to the pivot player, and this is the duty of the pivot player to run and take the position exact on the center line. Then this thing will happen, that is we call the fast throw off. फिर अब इसमें कुछ एस्पेक्ट काम कर रहे होते हैं बेसिकली, इसके कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो हमें वो इंपॉर्टेंट है व्हेन गेनिंग पोजीशन ऑफ द बॉल। तो ये इंपॉर्टेंट। अब क्या हमारे बच्चों को पता है, हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि बॉल पकड़ के करना क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा होता है। तो उनको ये ट्रेन होना चाहिए कि जैसी बॉल उनके पास आती है एंड देन दे गेट रेडी फॉर द फास्ट ब्रेक। What is the duty of the winger? What is the duty of the pivot player? What is the duty of the left back? What is the duty of the right back? What is the duty of the center back? ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी ये होता है। अब होता क्या है कि विंगर्स को पता नहीं होता, चलो विंगर्स को पता है तो सेंटर बैक को पता नहीं होता है व्हाट इज द ड्यूटी। तो अभी ये ड्यूटीज पता होने चाहिए, किस समय किस कंडीशन में क्या क्या चीजें की जाती हैं। देन द थिंग्स स्टार्ट। नाउ क्विकर अ टीम टैक्टिकल ट्रांजिशन, रिजल्ट विल बी द वंडरफुल रिजल्ट, यू गेट द 100% स्कोरिंग। अगर आपका टैक्टिकल ट्रांजिशन क्विक है, डिफेंस टू अटैक, तब क्या होता है, इस कंडीशन में आपका अगर क्विक अटैक अगर होता है, डिफेंस से अटैक में जाते हैं, तब आपका रिजल्ट 100% सही होगा। देयर वाइड रेंज। अब कई सारे हम सिचुएशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, वन वर्सेस गोलकीपर, सिर्फ गोलकीपर ने पास किया और स्कोर कर दिया। 2 वर्सेस 1 प्लस गोलकीपर, यानी 2 अटैकर आ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ द विंग्स एंड द गोलकीपर एंड द 1 डिफेंसिव प्लेयर, तब हमारा ये सिस्टम चालू हो जाता है। 3 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 1, 3 अटैकर 1 डिफेंडर इंक्लूडिंग द गोलकीपर। तो क्या ये भी सिचुएशन बनती है? 3 वर्सेस 2 प्लस गोलकीपर, तो क्या हमारी ये सिचुएशन बनती है कि 3 हमारे अटैकर हैं और 2 हमारे डिफेंडर प्लस गोलकीपर है? 4 वर्सेस 2। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें वी अप्लाई दिस फास्ट ब्रेक। नाउ अब ये इफेक्टिवनेस कैसे करेगी फास्ट काउंटर अटैक की? तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स कंसंट्रेशन। भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक प्लेयर्स का कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं है, तब तक ये काम नहीं करेगा। आपने मैच छोड़ दिया, आप थके हुए फील कर रहे हैं, तब भी ये नहीं होता। मूवी, रात में मूवी देखी है तो मूवी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप प्लेग्राउंड पर नहीं है। फिजिकली यू आर देयर, प्लेयर्स आर देयर, बट मेंटली दे आर नॉट। In that condition, it's quite difficult. Fast reaction is most important, and decision making abilities.
That is most important. In handball, everywhere these things work. And how we can improve? Early training. Early training, that means if you train the players at the age of 7 to 8 or 9 years, then they are able to improve their decision making ability. And this is the basically a problem in most of the countries. सबसे बड़ा एक problem यही है, ये वाला, ये decision making. So we have to improve this thing. Now अब की tactical roles चालू हो जाते हैं. Forward line fast break and the back line fast break. कोई बताएगा इसके बारे में? Anyone would like to participate? This is for you. What is this? Forward line fast break. हाँ, ठाकरे जी बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. हाँ, हेलो सर. फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक लाइक क्रिएट डेंजर एंड गोल स्कोरिंग. मतलब इसको फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक में हमें अटैक करना है, क्रिएट डेंजर एंड गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है. कौन कौन रहेगा? मतलब क्या? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. हेलो, आ रहा है सर? हेलो नहीं. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए जी. फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक लाइक जो स्कोर करना है उसको अपॉर्चुनिटी जो मिलना है हमें, वो सेल्फ ब्रेकिंग लाइक समथिंग. ओके, ठीक है. मैं एक्चुअली आपको सही से सुन नहीं पा रहा हूँ. यू आर नॉट ऑडिबल. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, इमरान खान इज जस्ट रेजिंग द हैंड. इमरान खान. इमरान खान. अभी इमरान खान जी ने अभी रेज किया था हैंड अपना. अच्छा ठीक है. कोई और बोलना चाहेगा? राकेश जी की आवाज किसी को क्लियर है तो वो बोल दे. कोई और ऐड करेगा? हेलो. हाँ 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 बोलिए. बैक लाइन फास्ट ब्रेक लाइक डायरेक्ट फास्ट ब्रेक, शॉर्ट प्रोग्रेसिव passes like using the direct pass to toward the shooters. चलिए ठीक है. मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? फॉरवर्ड लाइन में मतलब डायरेक्ट पास फेंक देते हैं. हाँ. और बैक लाइन फास्ट ब्रेक में क्या होता है? बैक लाइन फास्ट ब्रेक में शूटर को जो पास दिया जाता है वो प्रोग्रेसिव लाइक पासेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एंड सपोर्ट फास्ट ब्रेक. इसमें जिसमें 3-4 पासेस होते हैं, 3-4 पासेस. हाँ 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 हाँ. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, थैंक यू. गॉट द पॉइंट. ठीक है. थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज हैं. कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट किया. गुड. जी जी जी. पर यहाँ लाइक देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन, पर अटेम्प्ट अच्छा था. बेसिकली फॉरवर्ड लाइन से जो आप कर रहे हैं, दैट इज वी कॉल्ड द फर्स्ट वेव. वो फर्स्ट वेव बोलते हैं. जो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज है, और ये जो बता रहे हैं वो सेकंड वेव है. फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव. तो इसमें जो होता है फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक मींस है, यहाँ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स इन्वॉल्विंग इन दिस फास्ट ब्रेक. अब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, जो विंगर्स एंड पीपी आर द फर्स्ट लाइन फास्ट ब्रेक. यानी फर्स्ट लाइन हमारे ये होते हैं फास्ट ब्रेक में. एंड बेसिकली जो हमारे बैक लाइन आ जाते हैं, जो हमारे बैक पोजीशंस में जो डिफेंस कर रहे होते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी. विंगर्स आर द गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव द पास. दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन फास्ट and take the ideal position for receiving the pass from the goalkeeper or from the playmaker. And then afterward, this is supported by the second wing player and then the pivot player. So these are the forward line fast break. We consider this. And the back line fast break, when the back players are also involved with those players, then we call a back line fast break. यानी यहाँ involvement ज्यादा हो जाता है, but
ये अब यहाँ की बातें चालू, अब आपसे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि इन फॉरवर्ड लाइन में क्या होता है, वी हैव ए लेस पासेस, इन बैक लाइन फास्ट ब्रेक वी हैव ए मोर नंबर ऑफ पासेस एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग होती हैं, तो ये टैक्टिकल रोल चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ द विंगर, व्हाट इज द रोल ऑफ द पीपी, व्हाट इज द रोल ऑफ द बैक प्लेयर्स। तो आपको फॉरवर्ड लाइन देखेंगे तो ये हमेशा क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक लाइन जो प्लेयर्स होते हैं, दिस इज द, मैंने आपको याद है एक सेशन में बताया भी था कि ये वनरेबल सिचुएशन में सबसे, जहां गोल माउथ होता है, ओपनिंग होती है गोल माउथ की, वहां पर ये लोग डिफेंस कर रहे होते हैं। तो इनके पास डिफेंस करने के लिए वहां पर ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है, बट वेयर एज द विंगर्स हैव द अपॉर्चुनिटी सो दे कैन रन। So this is the role, basically forward line fast break and the back line fast break. तो हमें अपने प्लेयर्स को रोल बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इफ यू जस्ट सी ट्रांजिशन प्ले इन 3-1 प्लस गोलकीपर, यहाँ पर हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक सिंपल एक आपको डायग्राम दिखाया है, गोलकीपर ने बॉल थ्रो किया एंड यहाँ पर एक साथ 3 प्लेयर्स इज रनिंग। अब ये देखिए, दिस इज द, अगर आप देखेंगे इससे रिलेट कर रहा है फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक। तो ये फॉरवर्ड लाइन फास्ट ब्रेक इस बार रन कर रही है, दे आर रनिंग, विंगर्स दे आर रनिंग एंड देन आफ्टरवर्ड विद सपोर्ट बाय द बैक प्लेयर। तो यहाँ 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। 4+1, अब यहाँ 4+1 प्लस गोलकीपर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी 2 विंगर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड देन द बैक प्लेयर्स इन्वॉल्विंग अलोंग विद द पीपी। तो ये 4 प्लस गोलकीपर का एक एग्जांपल है एंड देन दिस इज द 5 प्लस गोलकीपर एग्जांपल। ट्रांजिशन पे, क्विक ट्रांजिशन पे आप कैसे कैसे कर सकते हैं, हियर आर सम एग्जांपल। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी पोजिशनिंग पर, तो यहाँ 5 प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। So how these players are taking their position. Now key principles while just teaching the fast break. First of all, always ready, the most important thing. Without or with ball, anyone can get the ball. अब सबसे पहले important है कि पहले रेडी तो होना चाहिए। अब होता क्या है, मैंने बोला था लॉ ऑफ रेडीनेस, अब वो तैयारी नहीं है, प्लेयर्स रेडी नहीं है जाने के लिए, they want to run, they don't want to run। तो आप उसमें क्या करेंगे, teams not able to score the goal। with or without ball दोनों कंडीशन में, first of all is the first principle is the readiness, law of readiness। second, अब क्या होता है, when the ball is out of play, कोई भी क्विकली बॉल को अंदर ला सकता है एंड देन स्टार्ट द प्ले। अब होता है क्या है, कभी कभी क्या होता है, अनट्रेन टीम्स होती हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो वेट करते रहते हैं कौन जाएगा, कौन थ्रो इन लेगा, कौन कॉर्नर थ्रो करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। इफ द प्लेयर हैज एन ओपन रिसीवर अहेड, अगर पहले से प्लेयर रेडी है पोजीशन में, पास द बॉल फास्ट एंड एक्यूरेटली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर रिसीवर तो रेडी है पर उसे बॉल क्या मिलती है, स्लो मिलती है। यहाँ एक बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर बॉल स्लो मिलेगी तो मैंने बोला था क्या एक फैक्टर काम करता है, कौन सा फैक्टर वेस्ट हो जाएगा अगर फास्ट बॉल नहीं फेंकेंगे, कोई बताएगा विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है अगर आप फास्ट थ्रो बॉल नहीं करेंगे तो? अभी 4 फैक्टर्स बताए थे ना, एक फैक्टर जो बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल 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 जिसे बोलते हैं टाइम। आपका अगर बॉल स्लो मूव करता हुआ जा रहा होगा तो भी वहां पर अपोनेंट आके उसको बॉल ले लेगा, डिफेंस कर लेगा। तो फास्ट और एक्यूरेट भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज, अगर वहां पर उसके पास उसने पोजीशन ले ली है, प्लेयर ने सारा कुछ कर लिया है, तो क्या होता है, क्या उसने स्पेस क्रिएट किया है, स्पेस क्रिएशन है, वो क्या अपनी स्टैगर्ड पोजीशन में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विंगर्स क्या अपनी आइडियल पोजीशन ले रहे हैं, पीपी ने क्या स्टैगर्ड पोजीशन किया है, या लेफ्ट बैक अपनी पोजीशन को स्टैगर्ड कर रहा है,
समटाइम्स व्हाट हैपन, विंगर जाके कॉर्नर में जाके पहले से पोजीशन लेता है, जरूरी नहीं है कि वो प्लेयर स्कोर करेगा, पर उसे होता क्या है कि एक डिफेंसिव प्लेयर उसके ऊपर एंगेज हो जाता है एंड सम अदर टीममेट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर द गोल। अब जो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सिंपल फास्ट ब्रेक, एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक। अब सिंपल फास्ट ब्रेक क्या होता है? व्हेन द टीम इज स्कोरिंग अप्लाइंग जस्ट टेकिंग वन पास, then it is called a simple fast break. This is comes under the first break, first wave. अब second extended fast break में क्या होता है? When the team scoring the goal with 2 or more than 2 passes, then it comes under the extended fast break. ये extended fast break बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है? सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम लोग इसे काउंट करते हैं। 2 और 2 से अधिक जब पास दिए जाते हैं तब ये एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक हो जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब कंप्लीट फास्ट ब्रेक क्या होता है? टीम इज स्टिल, अपोनेंट टीम इज स्टिल नॉट ऑर्गेनाइज, अपोनेंट टीम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, दे आर गेटिंग द चांस। मैं इसका आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको, आई विल शो यू द, तो आप इसे भूलिएगा नहीं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के अंदर अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। तो अभी बताऊंगा व्हाट इज कंप्लीट फास्ट ब्रेक। तो कंप्लीट फास्ट ब्रेक क्या होता है कि जब डिफेंस रेडी नहीं होता है, डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में उसे कंप्लीट फास्ट ब्रेक बोला जाता है। एंड देन द फास्ट थ्रो ऑफ। अब फास्ट थ्रो ऑफ कब होता है? when the team itself concede a goal and goalkeeper recovers the ball from the goal net and passes the ball to his teammate, basically a pivot player, and from there PP starts the quick throw off, fast throw off, and team attacks the opponent team, and opponent team is not organized in that particular time. So then we consider as a fast throw off, and this is one of the wonderful, we can say, a tactics to apply. What happens sometimes teams are not able to organize themselves after conceding the goal. वो आराम से जा रही होती हैं या थकी होती हैं, तो उस कंडीशन में गोलकीपर बॉल को बाहर निकालता है, थ्रो ऑफ के लिए एक प्लेयर को पास करता है, वहां पर प्लेयर रेडी होता है, ही रिसीव्स द पास, और वो एक अपने टीममेट्स को दे पासेस द बॉल, और जब तक अपोनेंट डिफेंस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, विद इन दैट टाइम दे अप्लाई दिस थ्रो ऑफ। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन काउंटर अटैक्स इन फास्ट ब्रेक। अब मैं आपको वो जो था यहाँ पर अभी, आई विल शो यू द वीडियो, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ आपको वीडियो क्लियर है? ये यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप का है। यस सर। आप लोग अपने वीडियोस ऑफ कर लीजिए जो लोग, देखिए मैं आपको ये देखिएगा, दिस इज द एग्जांपल। ये देखिए, अभी आप देखेंगे जो एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक के बाद किस तरीके से फास्ट ब्रेक, देखिए अभी डिफेंस इज नॉट गेट ऑर्गेनाइज, अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है, और ये देखिए इस पोजीशन से उन्होंने फास्ट ब्रेक किया। अब ये देखिए डिफेंस अभी वापस भाग रहा है, डिफेंस इज रनिंग बैक, स्टिल दे आर फाइटिंग एंड दे आर अप्लाइंग। अभी डिफेंस उनका चेंज करने की, तो ये कुछ ऑप्शन थे जहां पर आप देखेंगे, देखिए क्विक रिसीव बॉल, यहाँ पर क्विक रिसीव किया, दे रन फास्ट। अभी डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी अब देखिए स्कोर हो रहा है,
ये हमारा बेसिकली एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक के बाद जो हम लोग करते हैं, उस कंडीशन में डिफेंस रेडी नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो एग्जांपल था, दिस इज कंप्लीट फास्ट ब्रेक, ये इसका एग्जांपल था। मुझे मालूम है कि कई सारे अभी इसमें डाउट में आ गए होंगे, तो मैंने वो क्लियर किया है कि व्हेन द अपोनेंट टीम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली, एट दैट टाइम टीम यूटिलाइज दोज स्पेसेस, देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीट फास्ट ब्रेक। इज इट क्लियर? नाउ इट्स क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अटैक अगेंस्ट पोजिशनल डिफेंस। अब होता क्या है कि हम पोजिशनल जब वो डिफेंस हो जाता है, तब यहाँ पर चालू होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक थ्रू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ वी ब्रेक थ्रू, हाउ वी डिस्ट्रॉय द डिफेंसिव वॉल ऑफ द opponent team, of the defensive team, and just we get the opportunity to score the goal and create the opening to score, create the opportunity to his teammates. So here we just discussing this open play, and most important thing, what is open play? Now the term, whenever we just talking about the open that मुझे नाखून ढसे ऊपर ढसा है, और ये जो नीचे जो चमड़ा है am I audible? Yes, sir. Okay, now what is open play? Open play is basically a creativity of the player, of the team. ये एक मतलब सेट प्ले से बाहर की चीज की बात हो रही है। हम जो करते हैं उससे अलग प्ले कर रहे हैं, सेट प्ले से अलग है ओपन प्ले, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए प्लेयर्स में। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वो सारे 3-4 एग्जांपल्स थे, और वो सारे एग्जांपल सारे क्रिएटिविटी के एग्जांपल्स थे। फिर क्या होता है फ्रीडम ऑफ प्ले, क्या वो सही में फ्रीली खेल रहे हैं? हमारे प्लेयर्स फ्री खेलते हैं? अब देखिए ज्यादातर प्लेयर्स को प्रेशर होता है कि भाई तुझे पास फेंकना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। उनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी लेस। तो ओपन प्ले इसकी बात नहीं करता, ओपन प्ले जस्ट अपोजिट बात करता, फ्रीडम ऑफ प्ले, क्रिएटिविटी ऑफ प्ले। फिर क्या हो जाता है, क्या नॉलेज ऑफ बेसिक रूल्स इज देयर? जब हमारे प्लेयर्स को है नॉलेज ऑफ बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स की नॉलेज है, वेदर दे आर अप्लाइंग द रूल्स। अब ये बात आ जाती है, दिस इज अ फेमस सेइंग, द टीम अप्लाइज द मोर टैक्टिक्स and the winning chances of the team is high of those teams who breaks the rule, who breaks the rule. But how the team is allowed to break the rule? Now the question comes, कैसे भाई, कैसे आप रूल ब्रेक कर सकते हो? Within the rules you have to break the rule, that is called the break the rules. If you know the rule, then afterwards you can break the rule. So you're getting my point. अगर आपकी टीम को थ्रो ऑफ का पता ही नहीं है, अगर आपकी टीम को मालूम ही नहीं है थ्रो ऑफ होता क्या है, तो सीधी सी बात है कि वो आप बीट करेंगे। और मैंने बहुत अप्लाई किया, अप टू 3-4 years कंटिन्यू डोमिनेट किया बाय अप्लाइंग थ्रो ऑफ। कुछ लोग अभी बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि थ्रो ऑफ हम लोग कितना तेज करते थे, क्योंकि जब तक बहुत सारी टीम ने अडॉप्ट नहीं किया था। और एक ऑलरेडी एक मैच भी हम लोग हारे ड्यू टू दिस थ्रो ऑफ, क्योंकि हमारी टीम थ्रो ऑफ जैसे ही आया था, वी अप्लाई दिस थ्रो ऑफ। तो क्या वो रूल्स को जानते हैं, क्या वो अप्लाई करते हैं? क्या अभी मैक्सिमम टीम, सारी टीम्स अभी थ्रो ऑफ करने लगी हैं, सारी टीम्स थ्रो ऑफ यूज कर रही हैं। जो फास्ट थ्रो ऑफ होता है वो मैक्सिमम टीम यूज करने लगी हैं। पर क्या बिगिनिंग में जिन टीमों ने यूज किया था, सबसे ज्यादा एडवांटेज उनको हुआ था, तो उन्होंने रूल्स को अप्लाई कैसे किया? तो क्या बेसिक रूल्स की उनको है? दिस इज कम्स अंडर ओपन प्ले। तो ओपन प्ले छोटा सा 2 वर्ड का है, पर इट टेल्स लॉट ऑफ स्टोरी। क्या हमारे टीम्स में एक्शन ऑफ प्ले का कोऑपरेशन है? देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन द प्लेयर्स फॉर डूइंग द एक्शन। अगेन द स्टोरी स्टार्ट, भाई वो स्कोर ज्यादा कर लेगा तो दैट प्लेयर बिकम
match of the man of the match of the competition, that player gets the prize, that player gets the selection, that player gets the name, fame, prize, money, everything. अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस के लिए बात है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरी स्टार्ट, द फिलोसफी ऑफ ओवन प्ले इज नो सेल्फिश प्ले, कोऑपरेशन मस्ट बी देयर. अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, द फ्लेक्सिबिलिटी प्लेज अ वाइडर रोल एंड द वर्सटाइल प्ले की बात होती है. वर्सटाइल, इट मस्ट बी वर्सटाइल एंड फ्लेक्सिबल. क्या हमारा वो फ्लेक्सिबल है, क्या वर्सटाइल है, तब ये बात हम लोग को, तब ये ओपन प्ले की बात होती है. तो आप अगर ओपन प्ले को अब हम देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक थ्योरी निकल के आती है. आप देखिए कि क्या करना इंपॉर्टेंट है, क्या विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. दिस टेल्स ईच एंड एवरी, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ओपन प्ले क्लियर हो गया ना, देन वी कैन कंपेयर विद द सेट प्ले based on the game principles and action and rules, based on pre-trained collective maneuvers or create an opening. अब भाई मैक्सिमम क्या होता है, हमारे प्लेयर्स को क्रिएटिव होना चाहिए. जब हम जिससे बात क्या बोल रहे थे, क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी. जब तक हमारे बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे, उनको फ्रीडम नहीं होगा, तो वो इस तरह से ओपन प्ले नहीं खेल सकते. वो प्री ट्रेन मूवमेंट करते रहेंगे, वो पहले जैसा गेम खेलते रहेंगे, वो सारी चीजें. अब उससे नेक्स्ट क्या होता है, ट्रिगरिंग गेम प्ले इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. अब उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हेन टू पास, वेयर इज द ओपनिंग, व्हाट इज टेम्पोरल, व्हाट इज स्पेशियल. उनको पहले से पता है सारी चीजें, बिकॉज दे डेवलप द इंटेलिजेंस लेवल. नाउ दे कैन व्हाट हैपन. अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है सेट प्ले में, मैकेनाइज गेम प्ले सॉल्यूशन, इनहिबिट डिसीजन मेकिंग स्किल्स. भाई वही चल रहा है. भाई स्टार्ट करो वहां से, 7 से स्टार्ट करो and start rotation the ball and वो उधर से मिलेगा. so there is no creativity in the game altogether in the set play. अब यहाँ पर होता है क्या है, सेल्फ रेगुलेट चॉइसेस एंड एक्शन, वो खुद के कर सकते हैं. और आप मैक्सिमम, अगर आप अभी इस कॉन्सेप्ट को देख के, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप इस कॉन्सेप्ट को देख के कोई आप इंटरनेशनल मैच देखिएगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स कंपेयर विद द नॉर्मल कंडीशन गेम जो ज्यादातर खेले जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. हमारे अपने में मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम भी, हम लोग भी ये ज्यादातर ये सेट प्ले को फॉलो करते हैं बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम. और ये फैक्टर्स तभी काम करेंगे, हम लोग इस पे बात करेंगे, जब आपकी ट्रेनिंग अर्ली एज में, बिगनिंग एज में, और डिसाइसिव फैक्टर्स पे और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होगी, तभी वी कैन गो फॉर दिस ओपन प्ले. अब इसमें होता क्या है, मोर एंजॉयबल, रिवॉर्डिंग, फनेबल, फन होता है, इंजॉय करते हैं, वेरिएबल एक्शंस होते हैं, प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे खेलना है. प्रेशर नहीं तो मैच के पहले इतना प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं. तो इसके लिए सबसे बड़ी ये है. अब इसमें क्या होता है कि ज्यादातर एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, कोच कंट्रोल कर रहा होता है इस गेम को. सॉरी. अब इसको क्या करता है, इस चीज को कोच कंट्रोल करता है, पर ये लोग खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं. भाई कोच कहता है वहां पास फेंको, यहाँ पास फेंको, विंगर भाग गया, पीपी चला गया, पीपी को पास दो, देखो ओपन स्पेस क्रिएट हो रही है. ये हो रहा होता है सेट प्ले में, पूरा यहाँ पर रोल होता है. पर यहाँ पर कौन रेगुलेट कर रहा था, प्लेयर्स इटसेल्फ, दे आर, और दे आर एंजॉयिंग मोर मोनोटोनस, यानी बोर्डम इज मोर, एक जैसा गेम हो रहा होता है. एंड प्रेडिक्टेबल गेम प्रेडिक्टेबल होता है. तो इसीलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, आप इंटरसेप्शन ऑफ पासेस इज मोर. Now it's like we should take a 5-minute break
5 मिनट के लिए ब्रेक हो सकता है राइट नाउ? वी आर जस्ट टेकिंग 5 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सरफराज भाई कहाँ हैं? मोहम्मद सरफराज भाई फ्रॉम झारखंड, लगता है सो गए। अरे सर फोटो ओके, shall we begin this? क्या हम लोग शुरू करें? Shall we begin? यस सर। Okay. Okay, now after getting the knowledge of this open play and set play, अभी आप इस पे थोड़ा अगर ये क्लियर है तो अब आप इसको देखिए जो एक बार ये है, जैसे आई वांट टू शो यू। अब इसको देखिए इसमें कितना कोच का इन्वॉल्वमेंट है जब ये प्ले कर रहे हैं। पूरा स्टोरी यहाँ से हो रही है। अब ये सारे जो भी एक्शन होंगे देखिए, इनको सबकी पोजीशन देखिए, सबकी रनिंग देखिए। विंगर अपनी रनिंग पोजीशन ले रहे हैं। विंगर देखिए, विंगर कहाँ जा रहा है, बॉल अभी कहाँ है देखिए, पर कंक्लूड कौन कर रहा है? Who is the constructive player? Constructive player here देखिए चेंज हो रहा है। देखिए ड्यूटी देखिए, विंगर जस्ट टेक द पोजीशन, विंगर्स ने ये ओपन प्ले या डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मोर। अपनी पोजीशन सबको मालूम है। देखिए यहाँ पर प्लेयर्स दे नो देयर ड्यूटी, किसने रिसीव करना है, कौन देखिए जैसे रिसीव कर रहा है तो दे आर रनिंग फॉर देयर पोजीशन। ये देखिए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन प्ले। आप ओपन प्ले में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। तो these are some few examples of open play। अगर तो हमें इस पर अपने स्टूडेंट्स पर, अपने बच्चों पर इस पर ज्यादा रिलाय करना है, क्रिएटिविटी पर ज्यादा काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पर ज्यादा काम करना है, वर्सेटाइल बनाना है। यानी ओवरऑल उनका जो बेसिक प्ले होगा वो ओवरऑल होना चाहिए हर पोजीशन के साथ। कोऑपरेशन डेवलपमेंट करना है, नॉलेज ऑफ रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजों के बाद ही देन दे कैन गो फॉर द ओपन प्ले। और जितना अर्ली स्टेज में लर्निंग स्टार्ट होगी दैट प्लेज अ वाइटल रोल। नाउ न्यू ट्रेंड, अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये बड़ा ये है, ये सबको यूज करना चाहिए इन ट्रेनिंग नाउ अ डेज। न्यू ट्रेंड इन अटैक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तभी आप नए कर सकते हैं when you are having a range of techniques, when you are having a lot of like weapons in your arsenal, आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, तभी तो आप ये कर सकते हैं। आप डिफरेंट टेक्निक्स होंगे आपके पास, then you can apply those techniques in the game, आप गेम में अप्लाई कर पाएंगे। और फिर क्या होगा, अगर आपके पास सिंपल एक दो टेक्निक है, आप प्लेयर जंप शूट हाई जानते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है जंप शूट हाई के बाद क्या होता है, उनके पास स्टैंडिंग शॉट्स नहीं होती, जिसे बोलते हैं SSB SSW, ये सब नहीं होते, तो उनके पास लिमिटेड आर्सेनल होने के कारण गोलकीपर कैन इजीली प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर रेंज ऑफ टेक्निक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक उनको आनी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल। एंड देन द फास्ट एग्जीक्यूशन, हाउ दे एग्जीक्यूट दोस टेक्निक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनका क्विक एग्जीक्यूशन करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट कम्स अंडर द स्किल पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटाइजेशन ऑफ द एक्शन, दैट कम्स द दैट वी कॉल द स्किल। जब एग्जीक्यूट फास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि उनका ऑटोमेटाइजेशन होना जरूरी है। प्लेयर टू टेक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, हमारे कुछ प्लेयर रहता था इसमें, प्लेयर डोंट टेक रिस्क, कुछ प्लेयर्स रिस्क लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें क्या हो जाता है कि एक दो प्लेयर पे गेम ज्यादा फोकस होने लगता है। तो एवरीबॉडी शुड टेक अ रिस्क एंड एवरीबॉडी मस्ट हैव अ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट वी कॉल अ प्रोसेस, इट मस्ट देयर मस्ट बी सम प्रोसेस। हाउ दे कैन improve, if you are giving a different risky situation, अगर आप उनको different situations दे रहे हैं, different team environment दे रहे हैं, then they can improve this risk ability, that will comes under the risk management, and then this comes under the decision making ability. They improve their decision making ability and by giving this different risky situation, यानी same match type environment दीजिए जिससे they can improve। ना अभी क्या चल रहा है, शॉर्टर प्रिपरेटरी से बहुत छोटा सा रोटेशन 7, अभी इस समय जो नया ट्रेंड चल रहा है, प्रिपरेटरी फेज बहुत छोटा है टू कंक्लूड द स्कोर। पहले लंबे लंबे पासेस, लॉन्ग रोटेशन हो रहे थे, तो अभी जो नया ट्रेंड क्या चल रहा है ऑन शॉर्टर प्रिपरेटरी फेज, शॉर्ट, और वो क्या हो सकता है, शूटिंग में अकर एट एनी टाइम, यानी कभी भी शूटिंग हो सकती है। पहले वो ज्यादा पर्टिकुलर सिचुएशन पे काम हो रहा है, अभी शूटिंग कहीं से भी क्विकली हो सकती है, तो इसके लिए काम हो रहा है। इस समय जो नया ट्रेंड अटैक पे चल रहा है। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड इज स्ट्राइकिंग इन स्मॉल ग्रुप एंड विद द कोऑपरेशन विद द पिवट इज हाई लेवल। अभी पिवट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उस पर बहुत काम हो रहा है। तो आप देखेंगे ज्यादातर पिवट के रोल पर बहुत ज्यादा अभी हो रहा है विद द कोऑपरेशन ऑफ द, वो बैक के साथ खेलता है, वो लेफ्ट बैक के साथ खेलता है, सेंटर बैक के साथ खेलता है, राइट बैक के साथ खेलता है, डिफरेंट मूव्स में उसका पिवट का रोल रहता है। अब डिफरेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ, अगर हम बात करेंगे सिंपल, मैं अभी वो टर्म यहाँ यूज नहीं करना चाह रहा कि आप फिर उसमें कंफ्यूज होंगे, लाइक इफ यू आर यूजिंग स्क्रीनिंग, ROP, ग्रुप टैक्टिक्स आर देयर, पोजीशन चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है, पिवट का रोल बहुत वाइटल होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टैक्टिक्स, तो इसमें ये सारी चीजें इस समय प्ले कर रहे हैं। तो स्मॉल ग्रुप को किस तरीके से वो स्कोर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली जब वो वहां स्कोर जब क्रिएट कर रहा था, वहां गोल स्कोर हो रहा था, आप अगर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 प्लेयर्स, नॉट बाय द 4 or 5 प्लेयर्स। अभी वहां पर उसका नहीं था, दिस इज कोऑपरेशन। अब वो क्या था, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ फिर से वापस इधर आप इसको देखिए, ये वाला आप देखिएगा, बेसिकली विंग फिनिश करेगा, और देखिए ग्रुप में कैसे पासेस हो रहा है, ग्रुप का किसका रोल था, दिस इज नाउ क्वेश्चन फॉर यू। कौन आंसर करेगा,
इसमें किसके पास के कारण विंग एबल टू स्कोर द गोल? Who will give the answer? सर प्लीज एक बार वीडियो रिपीट करेंगे? मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें ग्रुप वर्क कैसे काम करता है। ये जो फर्स्ट अटैक हुआ था इसमें किसका रोल ज्यादा था? सेंटर बैक का राइट बैक प्लेयर का था। प्लेस का था। हाँ, लेफ्ट बैक ने आरोपी परफॉर्म किया था सर। हाँ, अगर आप यहाँ पर इसको पूरा देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो मोस्ट वाइटल रोल ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द गोल इज ऑफ नंबर का जो प्लेयर है उसने पास दिया है विंगर को। ये देखिए जो 4 का पास था, आपको दिख रहा है ये? यस सर। अच्छा, अभी देखिए जो आपका स्पेशियल और टेम्पोरल की बात हो रही है, ये देखिए विंग ने यहाँ पोजीशन ले लिया है। विंग ने इधर पोजीशन लिया हुआ है। ये देखिए लेफ्ट बैक इज पासिंग द बॉल। नाउ दिस इज अ कोऑपरेशन बिटवीन टू प्लेयर्स एंड दैट वी कॉल्ड आरओपी, रन फ्री ऑन ओन पोजीशन। ये चल रहा है। देखिए इससे किस तरह से 2 प्लेयर्स को क्लोज किया, विंग के प्लेयर को भी अपने पास क्लोज किया। ड्यू टू हिज एक्शन दिस प्लेयर इज एबल टू स्कोर द गोल एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टिव प्लेयर एंड दिस इज द कंक्लूडिंग प्लेयर। दिस प्लेयर इज कंक्लूड। अच्छा, स्टोरी बड़ी अच्छी है। अब यहाँ देखिए कि बाकी प्लेयर्स का रोल क्या है। ये देखिए विंगर एक यहाँ पर है, विंगर स्टैंडिंग राइट ओवर देयर 5 नंबर। और पीपी कहाँ है? पीपी यहाँ पर पोजीशन है। देखिए किस तरह से उन्होंने कंफ्यूज किया। विंगर इज हियर, पीपी इज हियर, राइट बैक इज ऑलरेडी देयर, सेंटर बैक इज हियर एंड लेफ्ट बैक। देखिए सारा लोड किधर चला गया डिफेंस का। डिफेंस इज थिंकिंग अबाउट ओवर देयर, समथिंग इज गोइंग हियर। तो यहाँ पर पीपी ने कंफ्यूज किया, पीपी ने इस डायरेक्शन में चला गया। तो ड्यू टू द स्पेशल एक्शन डन बाय द पिवट प्लेयर, this opening is created and very wonderfully is utilized by the winger with the pass given by the left back player 4 number position। इसने पास दिया, अब इसने 2 प्लेयर को क्लोज किया और ये बहुत अच्छा एक टैक्टिकल मूव है। जैसे वंडरफुल टैक्टिकल ग्रुप टैक्टिक जो 2 प्लेयर्स ने अप्लाई करी है। तो दिस इज बेसिकली आउट नंबरिंग सिचुएशन क्रिएटेड बाय द प्लेयर नंबर 4। ये आउट नंबरिंग सिचुएशन कर दी। देखिए 2 प्लेयर आ गए ना, अब ये देखिए 1 प्लेयर एक्स्ट्रा हो गया ना, इसी को आउट नंबरिंग सिचुएशन बोला जाता है। 6 वर्सेस 6 में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 सबके पास सारे प्लेयर्स हैं। पर आप बताइए कौन एडवांटेजेस पोजीशन में है? बिकॉज अभी यहाँ एक ही प्लेयर नहीं मिल गया ना ओपनिंग इसको इस डायरेक्शन से। ये मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आउट सिचुएशन क्रिएट करी बाय यूजिंग अ ग्रुप टैक्टिक्स। यहाँ पर ग्रुप टैक्टिक्स का लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। तो पर रोल देखिए ईच एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर रोल, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू स्कोर द गोल। तो ये बेसिकली अभी ये प्रेजेंट ट्रेंड में है, इस पर ये चल रहा है। नाउ हम कभी भी जब टीचिंग की बात कर रहे होते हैं, हम अगर टीचिंग में अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से ये देखेंगे कि बिल्डिंग अप प्ले टैक्टिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। यू मस्ट कंसीडर दिस थिंग। तो टीचिंग बेसिक बिल्डिंग, अभी हम किस तरह से ग्रुप टैक्टिक्स हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने गेम में, हाउ वी कैन डू। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखिए सारे एस्पेक्ट में, तो हमारे जो प्लेयर्स को आना चाहिए, दैट इज वी कॉल्ड अ ब्रेकिंग अप
how we break up the things. अब ब्रेक थ्रूज कैसे किए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स मस्ट नो द पेनिट्रेशन उनको मालूम होना चाहिए, किस तरीके से वो पेनिट्रेट करते हैं बिटवीन द डिफेंडर. पेनिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन व्हाट इज द गोल मेकिंग सिचुएशन? क्या गोल मेकिंग सिचुएशन क्या क्या होती हैं, क्या वो प्लेयर्स को पता है क्या? ये बहुत की फैक्टर है कि आपका गोल स्कोरिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. फिर हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है कि मेकिंग अ स्पेस. क्या स्पेसेस क्रिएट करना आता है प्लेयर्स को? प्लेयर्स मस्ट नो दैट क्रिएटिंग द स्पेस. इसे हमने जब शुरू में पढ़ रहे थे जिसे बोलते हैं स्पेशियल इन रिलेशन टू स्पेस. उनको स्पेस क्रिएट करना आता है. तो अभी बहुत अच्छा एग्जांपल था कि पीपी ने किस तरीके से क्रिएट करवाया स्पेस. तो उनको पता है हाउ टू क्रिएट स्पेस. क्या फिर टेम्पोरल स्पेस पता है, वो जो टाइम है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना. तो ये टीचिंग में हमारी ये सारी चीजें आनी चाहिए. फिर क्या आवर प्लेयर इज equipped with the one-on-one situation, one versus one खेल सकते हैं क्या? They are able to give the feint. They are able to create a numerical advantage. अभी देखा किस तरीके से प्लेयर नंबर 4 ने एक न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट किया अपनी टीम के लिए. That's why the wing player is able to score the goal. तो क्या हमारी टीम का जो प्लेयर है वो 1 versus 1 खेल सकता है? 1 versus 1 खेलेगा तभी वो न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट करेगा. क्या उसकी जो अटैकिंग एबिलिटीज है वो कंटिन्यूटी में रहती है, कंसिस्टेंसी है? अगर हम देखें क्या वो कंसिस्टेंसी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी है तो उसके ऊपर काम करना है, कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करना चाहिए. क्या उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है? एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए बिना एक्यूरेसी के कुछ भी नहीं होता. एक्यूरेसी इन थ्रोइंग, एक्यूरेसी इन पासिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका पास एक्यूरेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी. तो पास मस्ट बी एक्यूरेट. तो क्या वो ट्रेन है उन चीजों के लिए? देखिए सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, इंडिविजुअल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है. ये क्या वो सारी चीजें पासिंग एबिलिटीज आती है, उसकी पासिंग एबिलिटीज अच्छी है. क्या वेदर हैविंग अ गुड कैचिंग एबिलिटी, क्या उसके पास गुड कैचिंग एबिलिटीज है? क्या वो क्विक बिल्डिंग ऑफ अटैक फेज में आ सकता है? ट्रांजिशन टू डिफेंसिव अटैक में प्लेयर्स रेडी हैं क्या? whether they are able to create a pressure on the opponent by using the piston movement. क्या piston movement जानते हैं वे? हमारे प्लेयर्स piston movement के लिए रेडी हैं? piston movement जानते हैं? तो ये सारे जब हमारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं तब हम ये ग्रुप टैक्टिक्स पे काम कर सकते हैं. whether they know narrow playing or depth playing or width playing. तो नैरो में खेल सकते हैं, विड्थ में साइड लाइन पे जाके खेल सकते हैं, लास्ट एंगल में जाके खेल सकते हैं. कई सारे विंगर्स होते हैं एंड लाइन पोजीशन पर जाने से उनको घबराहट होती है. दे डोंट वांट टू गो उस डायरेक्टली इधर से जाने की, साइड लाइन से जाने की, जंक्शन फ्रॉम द 9 मीटर लाइन के पास से कोशिश करते हैं. whether they know their positional area, बेसिक पोजीशन पता है उनको कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरा रोल क्या है. ये जब सारे फैक्टर्स मिलते हैं then we are able to teach the group tactics. हम ग्रुप टैक्टिक्स और टीम टैक्टिक्स से काम कर सकते हैं. तो देखिए बहुत सारी बात अगर हम इसे आप नहीं भी हो सकता हो, अगर सोचोगे क्या बहुत सारा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं बेसिकली द प्लेयर मस्ट बी टेक्निकली इक्विप्ड. Then after he or she is able to learn the technique, तभी वो सीख सकता है. जब तक वो टेक्निक उसकी इम्प्रूव नहीं होगी, इंडिविजुअल टेक्निक इम्प्रूव नहीं होगी, विद बॉल एंड विदाउट बॉल, ऑल द टेक्निक्स कम अंडर द विद बॉल एंड विदाउट बॉल. ये आपके लास्ट सेशन में हो चुका है, विद बॉल एंड विदाउट बॉल क्या क्या रोल होते हैं प्लेयर्स के. जब तक वो इक्विप्ड नहीं होंगे, उसकी बेसिक पोजीशन उसे पता है कि नहीं पता, रेडी टू
रिसीव पता है कि नहीं पता, रेडी टू रन पता है कि नहीं पता, स्क्रीनिंग पता है, पोजीशन चेंज, ये सारे जब तक उसको फैक्टर्स पता होंगे तभी दैट ही और शी कैन एबल टू परफॉर्म द ग्रुप प्रैक्टिस। नाउ हियर इज सम एग्जांपल। अब ये बिल्कुल जो बिगिन नोवाइस है, बिल्कुल शुरुआत में आया है, नया प्लेयर है, बिल्कुल नए प्लेयर के लिए, तो स्टार्ट विद 3 वर्सेस 2, वंडरफुल। 3 अटैकर रखिए और 2 डिफेंडर रखिए, गोलकीपर यूज कर सकते हैं, 4+3 कर सकते हैं, यानी थोड़ा इजी कर दीजिए कंडीशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 अटैकर हैं और 3 डिफेंडर्स हैं, तो इजियर कंडीशन में नोवाइस को खेलने के बिल्कुल जो आपके न्यू कमर्स हैं, नोवाइस है बेसिकली न्यू कमर बिगनर, तो थोड़े से कंडीशन हो चुके हैं इन एनवायरनमेंट, दे नो द गेम लिटिल बिट। So then we can improve this 4 versus 4, 5 versus 5, 3 versus 3, 2 versus 2. That can be just start with the training with team tactics. Now for intermediate players, 5 versus 5, 6 versus 6, zone pressuring defense. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जोन प्रेशरिंग टेक्निक आप देखिए, यहाँ पे 2 प्लेयर्स अटैक कर डिफेंस कर रहे हैं डिफरेंट जोन में, तो डिफेंस का मोड चेंज कर सकते हैं आप, डिफरेंट जोन भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक समटाइम यू कैन डिवाइड फॉर ओनली फॉर इस तरीके से भी आप यू कैन डिफरेंट, ये डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक पैटर्न होता है फॉर द इंटरमीडिएट प्लेयर, आप डिफरेंट एक जोन मार्क कर दीजिए, उस कंडीशन में वो खेल सकते हैं मिड साइड। फॉर एडवांस प्लेयर अब इसमें 6 वर्सेस 6, 7 वर्सेस 7 इन कंडीशन में कर सकते हैं हम, इसमें डिफरेंट जोन में ट्रेनिंग दे सकते हैं, लाइक फॉर द विंगर, फॉर द बैक प्लेयर, फॉर द सेंटर बैक, लाइक दैट वी कैन divide our zone according to the level of the player or according to demand of the game. हमारा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वी कैन गो फॉर, तो इस कंडीशन में वी कैन गिव द टीचिंग ट्रेनिंग टू आवर टीम ऑफ टैक्टिक्स, टीम टैक्टिक्स को हम इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं जो बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस क्रिएट डिस्टिंक्टिव गेम प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि भाई आपके अकॉर्डिंग तो डिफेंस नहीं काम करेगा ना, क्वेश्चन तो यहाँ आ जाता है, भाई आपने तैयारी करी बहुत अच्छी है बात है, पर जरूरी नहीं है कि डिफेंसिव प्लेयर का जो बिहेवियर हो आपके जैसे होगा। डिफेंसिव बिहेवियर इज चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहेगा। अब क्या उसके अकॉर्डिंग आपने तैयार किया है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एट द लेवल ऑफ ग्रासरूट लेवल। ग्रासरूट लेवल पर ये चालू हो जाना चाहिए। अल्टीमेटली प्लेयर हैव टू प्ले अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस एंड द बिहेवियर ऑफ द डिफेंडर इज टोटली डिफरेंट, so they must know the defensive behavior of the defender also. अब इसमें क्या होता है कि जब हम फाइनली अगर बात कर रहे होते हैं तो प्ले फ्रॉम द बैक अगेंस्ट फुल कोर्ट, अब हमें इसमें डिफरेंट सिचुएशन में दिया प्ले फ्रॉम द बैक अगेंस्ट द फुल, तो इसमें कुछ ऐसी है कि हम बैक अगेंस्ट फुल कोर्ट हम उनमें इससे खेल सकते हैं, अटैकिंग ओपन जोन डिफेंस कर सकते हैं, अटैकिंग अगेंस्ट मोर कॉम्पैक्ट, यानी सिचुएशन हम चेंज करेंगे। हाउ वी कैन डेवलप दिस थिंग, 2 and 3 लाइन डिफेंस के अगेंस्ट में कैसे खेलेंगे, लाइक अगर सम टीम इज यूजिंग 3-3 डिफेंस, 3-3 डिफेंस हो रहा है, और मे बी एडवांस ऑफेंसिव डिफेंसिव सिस्टम 3-2-1 कोई खेल रहा है, 3-2-1 अप्लाई करता है, तो इसको बेसिकली 3 लाइन डिफेंस बोला जाता है, 3-2-1 डिफेंस होता है। तो इसमें अगर कोई खेल रहा है तो उस कंडीशन में आपके प्लेयर्स कैसे खेलेंगे, तो इन डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे करेंगे, यानी फुल कोर्ट में प्रेशर है तब आप कैसे खेलेंगे, ओपन जोन डिफेंस हो रहा है, खुला हुआ 6-0 है उस समय 5-1 की सिचुएशन में आप कैसे खेलेंगे, कॉम्पैक्ट डिफेंस हो रहा है तब कैसे खेलेंगे, 2-4 है, 4-2 है, 3-3 है, उसमें आप कैसे आप अटैक करेंगे, 3 लाइन 2 लाइन हो रहा है, 4-2 डिफेंस हो रहा है, 3-2-1 हो रहा है, उस कंडीशन में आपकी टीम कैसे खेलेगी, तभी वो खेल सकते हैं व्हेन वी आर गेटिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज पैडागोजिकल पर्सपेक्टिव, अब पैडागोजिकल क्या होता है, पैडागोजिकल इज बेसिकली आर्ट ऑफ टीचिंग, आप किस तरीके से उनको सिखाते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं देयर इज बेसिकली अ बेसिक ऑफेंसिव प्रिंसिपल, कुछ ऑफेंसिव प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। तो नंबर 1 इज बैलेंस अटैक,
द अटैक मस्ट बी बैलेंस विड्थ एज वेल एज डेप्थ, यानी दोनों साइड में खेलना आना चाहिए। विड्थ में भी खेल रहे हैं, डेप्थ में भी खेल रहे हैं। समटाइम व्हाट हैपन, वो हमारे बच्चे जाते ही क्विक जाके अटैक कर देते हैं, बॉल थ्रो कर देते हैं क्विकली, तो बैलेंस अटैक नहीं। यूज ऑफ टीम वर्क टू गेट फ्री, क्या वो टीम वर्क यूज कर रहे हैं, जैसे गिव एंड गो कर रहे हैं, वेदर दे आर अप्लाइंग गिव एंड गो। अभी आपने देखा था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे, गिव एंड गो, उन्होंने पास दिया, देन दे गेट द पोजीशन एंड देन दे अगेन रिसीव द बॉल। तो वो उसमें करते हैं, उनका टीम वर्क कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, हाउ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन वर्क, इट वर्क ओनली व्हेन द टीम हैविंग अ टीम कोहेजन, इनमें टीम कोहेजन है and they are working as a team, that comes under teamwork। यहाँ पर we आ जाता है, not I to we। फिर क्या विदाउट बॉल वो कैसे खेलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लेयर्स डजंट नो हाउ टू प्ले विदाउट बॉल until and unless they get the ball। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे प्लेयर्स को नहीं पता है विदाउट बॉल भी कैसे खेला जाता है। तो ये प्लेयर्स को पता होना चाहिए, दे मस्ट नो हाउ टू प्ले विदाउट बॉल। अभी जो मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए थे, पोजीशनिंग ले रहे हैं, बेसिक पोजीशन ले रहे हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल था, पीटी ने अपना कहाँ पर पोजीशन लिया था, तो जो अभी वीडियो आप देख रहे थे, पीटी ने किस तरह से अपोनेंट टीम को कंफ्यूज किया। उसके पास बॉल नहीं था, बट दे आर प्लेइंग अ इक्वल गेम, हैविंग लाइक अ बॉल, जैसे उसके बॉल है वो खेल रहे हैं। They are interconnected, they must be interconnected, their movement like that। तो उसमें यही बोले थे कि how do they penetrate the defender, how they take the position, how they play the one versus one, the big ball में ये सारी चीजें आ जाती है, how they penetrate the defense। आप क्या threatening action कर रहे हैं क्या, बॉल है पर they are passing the ball most of the time। Basically the beginners just do these things, they pass the ball without penetrate inside the defense wall and there is no pressure on the defensive wall, कुछ फर्क नहीं पड़ता, no outnumbering situation is there। तो क्या हम वो चीज अप्लाई कर रहे हैं, क्या penetration is there, one on one action is done by the player, attacking player with the ball, क्या वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये important factors होते हैं। तो we must condition and train our player according to these principles, that is basic principle, balance attack, teamwork must be there, how to play without ball and how to play with ball, because there must be a threatening action done by the player who having a ball। जिसके बॉल है तो threatening action उसका करना is very important, बहुत जरूरी है। Now here some like ये तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये ग्रुप टैक्टिक्स का एक एग्जांपल है और किस तरीके से कर रहे हैं, अटैक फीलिंग हो रही है। Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक साथ कितने फैक्टर्स देखिए, 2 वर्सेस 1 सिचुएशन है। देखिए प्रेशर ट्रेनिंग स्टार्ट। अभी प्रेशर डिफेंस हो रहा था उनपे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीटी। तो ये कुछ यहाँ पर आप वीडियो देख रहे थे, जो इसका बेसिकली ये दिखा रहा था कि किस तरीके से ग्रुप टैक्टिक्स कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ पर एक कोऑपरेशन की बात है कि किस तरीके से हाउ वी पेनिट्रेट इन डिफेंस 3 to 1। ये देखिए, ये अभी एक सिचुएशन है। देखिए मैं आपको, अगर जो लोग नहीं जानते 3 to 1 डिफेंस, मैं उनको बता देता हूँ। इट इज द मोस्ट ऑफेंसिव डिफेंसिव सिस्टम इन हैंडबॉल। ये हैंडबॉल में से 3 लाइन डिफेंस भी बोलते हैं। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। तो ये है 3 यहाँ पर रहेंगे
सर्कल डिफेंडर्स रहते हैं, and they two in the mid of the court, and this one player exactly in the near to the center line. So it is like a advanced offensive defense बोला जाता है. It creates in this, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है. ये बिल्कुल एक जैसे एक फाइटर प्लेन होता है, लाइक दैट. तो यहाँ 3 प्लेयर हैं, 1 यहाँ और ये 2 प्लेयर यहाँ पोजीशन लेते हैं और 1 प्लेयर यहाँ पोजीशन लेते हैं. तो दिस इज 3-2-1. 3-2-1 को कैसे बीट कर रहा है विद देयर कॉम्बिनेशन, आप ये देखिए. इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल स्टार्ट हुआ. फर्स्ट इज द इंडिविजुअल टैक्टिक स्टार्ट, इंडिविजुअल सॉल्यूशन फर्स्ट. सारे बैक स्टेप्स 9 मीटर पर है. इसने 1 वर्सेस 1 सिचुएशन क्रिएट किया. ये देखिए, अगर आप यहाँ देखिए किस तरीके से ये हो रहा है. जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर स्टैटिक. इनका जो नेचर है वो बहुत वर्सेटाइल डायनामिक नहीं है डिफेंसिव टीम का. अब इन्होंने क्या किया, ये जो प्लेयर है इसने पास किया, ये प्लेयर पास करेगा, यानी ही बेसिकली व्हाट ही डिड अ 1 वर्सेस 1. ये 1 वर्सेस 1 ये इसने किया था. यहाँ पर इसे 1 वर्सेस 1 सिचुएशन क्रिएट किया और यहाँ पीपी के पास 2 ऑप्शन यहाँ अप्लाई किया. या तो इस डायरेक्शन में जा सकता था या इस डायरेक्शन में, या ब्लॉक कर सकता था. और इसने इस डायरेक्शन में जाके ब्लॉक करके ही रिसीव द वंडरफुल पास एंड कन्वर्ट द गोल. अब इसे आप पूरा मूवमेंट एक बार देखिए तो ये क्या था, बेसिकली आप इंडिविजुअल टैक्टिक्स विद द ग्रुप टैक्टिक्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन प्ले. अब नाउ क्रॉसिंग हो रही है. सेकंड टैक्टिक ये देखिए, बैक टू बैक, विंग वर्सेस बैक एंड देन बैक वर्सेस बैक. देखिए स्पेस कितनी बन रही है. टीपी ने 2 प्लेयर एंगेज किए. अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू. ये यहां से रन करना चालू किया. अब ऑप्शन है, या तो वो शूट कर सकता है 1 2 3. अब वो 3 प्लेयर को एंगेज करेगा अपने साथ. ये देखिए 3 प्लेयर को एंगेज कर लिया उसने. 1 2 3 एंड ही एंगेजेस 3 प्लेयर. अभी यहां से इसका कंक्लूजन आएगा. पिवट आउट में नहीं, इसे रन फ्री बोलते हैं. आरओपी, रन फ्री और ऑन पोजीशन.
another position, RAP. This is RAP, run free on another position, run free किया. अभी पीटी बाहर आ चुका है. देखिए विंगर अपनी पोजीशन ले रहा है. राइट विंग ने पोजीशन ले ली. पिवट इज हियर. ये देखिए पिवट एक्चुअली में ये है, ये नहीं है. और देखिए पिवट कैसे क्रिएट करेगा कंफ्यूजन. विदाउट बॉल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ विदाउट बॉल. नाउ दिस प्लेयर इज एम्प्टी. So this is a special acknowledgement to International Handball Federation, IHF, for this whole presentation. Thank you.